Yesterday we have seen the different features of IC 555, and then we have seen the functional block diagram of 555. How pin 2 and 6 are the reference points, 1/3 VCC and 2/3 VCC, that we have seen. Whereas the pin 6 is connected to the upper comparator C1 and the pin 2 is connected to lower comparator. And we have seen how this acts. When the voltage less than 1/3 of VCC is applied to pin 2, it sets the output. The output becomes high. And similarly, when at pin 6, the voltage goes above 2/3 of VCC, the output becomes low. And for different output, how the Q bar acts to this transistor so that it allows a path to discharge or open circuited. So as we have seen, if Q bar is high, this transistor Q1 will be on so that the collector and emitter will be shorted. Thereby from pin 7, it will get a path to discharge if at all at pin 7 some capacitor is connected. And in that journey, we have seen that how this 555 can be used as a stable multivibrator. So now let me, what I can say, revise a little bit and derive that thing. So in the same tune, this is the very same circuit for the stable multivibrator. Let us say this is my RA, this is RB, and this is capacitor C. So we see the voltage across capacitor some sort of like this one. So it alternates between 1/3 of VCC to 2/3 of VCC. So let me repeat once for a while. Let's say initially the output is high. If the output is high, means Q is 1. What will be Q bar? Q bar will be low. When the Q bar is low, internal transistor, that will be off. And as it is off, you can say here pin 7 is acting as an open circuit. So thereby it gets a path, this capacitor gets a path to charge. So we'll see the charging path is somewhat like this. We can say the charging time is decided by this path. The capacitor is charging through RA, RB and C. And now the capacitor voltage is increasing. Okay. So now the capacitor voltage is increasing, and when it reaches a voltage equal to 2/3 of VCC at pin 6, this voltage goes above 2/3 of VCC. Due to this threshold pin, the upper comparator will become high, which is connected to reset of the flip-flop. So it will reset the output. So output will become low. Now here the output is low. So Q bar will be high. So transistor will be on and it will get a path to discharge. So there will be a discharge. Now this capacitor will discharge through this path. As internal transistor is connected, collector and emitter will be shorted due to transistor on. So there will be a discharging of this capacitor voltage. So the voltage across capacitor will now start decreasing. So from 2/3 of VCC it is decreasing, and the time will come when it reaches a 1/3 of VCC. It is decreasing. When it goes just below the 1/3 of VCC, or it becomes equal to 1/3 of VCC, due to this pin 2, the lower comparator will become high, and which will set the output. And as the output sets, output will become high. And as output will be high, Q bar will be low, transistor will be off, and the capacitor will charge. So it capacitor charges and discharges between 1/3 VCC and 2/3 VCC. I think in the initial talk also I said the timing is decided by the charging and discharging of capacitor. What is this voltage? This is the voltage across capacitor. So now let us try to get the relation for time period. How will be its time period? See, here we are seeing the charging. So I can say this is charging time. And here capacitor is discharging. So let us say this is my discharging time. Again, there is a charging. So can I say this is a total time period? So I can calculate the frequency if I can calculate the time period. Now how to calculate the time period? That is our job. We can say determination of time period. Now this time period comprises of two things: charging time and discharging time. So one by one we'll tackle. And as I said, the similar formula, the voltage across capacitor will give us. So this is the time from, you can say T to 0 to TC. You can say this is, we have started from 0 time to, let's say this is a TC time.
then let's say this is a TD time. Okay, like this will go, and we'll add this TC plus TD to become total time period. So what is the formula for voltage across capacitor? जनरल फार्मूला वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय, क्योंकि ये हमने कहाँ यूज किया है, एस्टेबल यूजिंग ऑप एम्प में भी यूज किया है, यहाँ भी यूज कर रहे हैं. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय फाइनल वोल्टेज डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल e raised to power minus t by tau. Is it okay? We can here like this, we can show that voltage across capacitor is a function of time. Now tell me what will be the initial value for the charging. This is a charging time, 1/3 of VCC. It is starting charging from 1/3 of VCC. I'm trying to derive that TC. क्या बताया था voltage across capacitor? The general formula is VF VI minus VF e raised to power minus t by tau. Now our charging discharging of capacitor is like this. So it starts from 1/3 of VCC. It could have charged up to VCC, but it changes only at the 2/3 of VCC. Similarly, while discharging, it starts from 2/3 VCC. It could have discharged up to 0 volt, but it reaches up to 1/3 of VCC. ये जो डैश्ड लाइन है ये फाइनल वोल्टेज देने के लिए काम में आता है. So if observe during the charging time, this is a charging time, initial value is 1/3 of VCC and the final value is it could have reached up to VCC. Just put the value. What will be time constant? Time constant is product of RC. So what is the in the path, what are the resistor? RA plus RB is the resistor and the capacitor is C. The voltage across capacitor becomes final voltage is VCC. Initial voltage is 1/3 of VCC minus final voltage is VCC e raised to power minus t by tau na RA plus RB into C. Now we'll put certain condition. What condition? At time t equal to TC, it reaches to what is the value of voltage across capacitor at time t equal to TC? See what condition we can put here in order to derive the formula for TC. Let us say if it has started from 0 and when it reaches TC, what is the value of capacitor voltage at time t equals to TC? The voltage across capacitor at time TC will become 2/3 of VCC. So that value we can put here. So ultimately I'll get here 2/3 of VCC plus VCC. 1/3 minus VCC, it will be minus 2/3 VCC and it is product with, now t equal to TC we can put here RA plus RB into C. So this needs to be manipulated. I'll take this at the left hand side and this at the right hand side. So what I'll get, 2/3 of VCC e raised to power minus TC by RA plus RB into C, which is equal to VCC minus 2/3 VCC. So it becomes 1/3 of VCC. Okay, here 2/3 of VCC e raised to power minus TC by RA plus RB into C. So are you with me? This Yes, VCC, sir. Yes, VCC, sir. this VCC get cancelled. This 3 get cancelled. So ultimately I'll get RA plus RB into C equal to this 3 get cancelled. So it will become 1/2. Now you know how to calculate the TC or how to put this exponential term in the outside by taking natural log. Okay? So if I take a natural log, I'll get a minus TC upon RA plus RB into C, and here I'll get a natural log of 1/2. Now here there is a negative term. So in order to remove that one negative term, इसके पहले कर चुके हैं ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, natural log of 2. So TC equal to, I'll get linear natural log of 2 into RA plus RB into C. If you put a value, you'll get 0.693 RA plus RB into C. So hope you could understand this one, how we have reached. Is there any problem in any, is there any No, problem? sir. No. No, sir. So in the same way, we can go for discharging. Now in the discharging time, same formula will apply. What is that? Final voltage difference of initial and final e raised to power minus t by tau. Now just tell me what is the final value and what is the initial value. Discharging is like this one. So while discharging, it starts from
2/3 of VCC, it could have discharge up to 0 volt, but it reaches to 1/3 of VCC. एक ही याद रखना, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो इनिशियल वैल्यू, कहाँ तक जा सकता था वो फाइनल वैल्यू, और कहाँ पहुंच गया तो उसको कंडीशनल वैल्यू रखना है। तो तीन स्टेप में आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते, समझे? तो आप बताओ मुझे इनिशियल वैल्यू क्या है? 2/3 of VCC. Perfect. So initial is 2/3 of VCC and final voltage 0. 1/3 of VCC. यही गलती हो सकती है बस, इसलिए मैंने ये डैश्ड लाइन बना रहा हूँ ना, ये बनाना आप कहाँ तक वो जा सकता था, चार्ज या डिस्चार्ज कहाँ तक हो सकता था, वो फाइनल वैल्यू है। 1/3 of VCC. 0 आएगा था, 0 आया क्या सब? 0 आएगा। ये कहाँ तक जा सकता था चार्जिंग का, हमने कहाँ तक लिया? VCC तक। और डिस्चार्ज कहाँ तक हो सकता है? 0 और VCC में ही होगा ना, क्योंकि ये पाथ कैसे देखो, एक तो ये कैपेसिटर अगर ये पिन 2 और 6 नहीं लगे होते तो ये VCC तक चार्ज हो जाता था, और पूरा डिस्चार्ज होना रहता तो 0 तक डिस्चार्ज होता है ना। तो इनिशियल और फाइनल उस तरीके, इनिशियल जहां से होता है, फाइनल ऐसे याद रखना कि जहां तक वो जा सकता था, लेकिन वो कहाँ अटक गया वो कंडीशनल वैल्यू रखना है, ठीक है। तो अभी फाइनल वैल्यू क्या रखना, ये कहाँ तक डिस्चार्ज हो सकता था, 0 वोल्ट। और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, पाथ क्या है, टाइम कांस्टेंट बता दिए तो आपको सब समझ में आ गया। आर और सी का प्रोडक्ट रहता है, इस डिस्चार्जिंग के वक्त रजिस्टर और कैपेसिटर का कौन सा पाथ है, देखो चार्जिंग के वक्त ये VCC से RA, RB और C, तो 2 रजिस्टर थे सीरीज में, इसलिए RA प्लस RB ये टोटल रजिस्टर हो गया, और कैपेसिटर एक ही है तो C, RA प्लस RB R हो गया, C ये कैपेसिटर हो गया, दोनों का प्रोडक्ट लिए जब भी अपन ने टाइम कांस्टेंट। अब डिस्चार्जिंग कहा कौन से पाथ से हो रहा है, देखो RA का रोल है क्या डिस्चार्जिंग के वक्त? नो सर। तो सिंपल है, कितना होगा डिस्चार्जिंग, टाइम कांस्टेंट कितना होगा, ये बहुत RB से ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सब चीजों में काम आएगा कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस पाथ से हो रहा है, उसका जो टाइम कांस्टेंट है ना वो कितना स्लोली या फास्ट चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है ये डिसाइड करता है। ये जो टाइम कांस्टेंट है ना, ये कितना स्लो या फास्ट चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है ये डिसाइड करता है, और जितना स्लो या फास्ट होगा उससे ये TC और TD वेरी होंगे, ठीक है ना। अब ये वैल्यू मैं रख देता हूँ, ये VCT इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू इज 0, initial is 2/3 of VCC minus 0 e raised to power minus t by RBC, यानी यहाँ मिल गया ये सब 2/3 of VCC e raised to power minus t by RBC। अब क्या कंडीशन रखेंगे आप कि हमको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एक जगह पे हमको मालूम होना डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू, तो हमको ये मालूम है कि TD 8 टाइम TD ये कितनी वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू मालूम नहीं है बीच में कहीं भी, हमको मालूम है आफ्टर सर्टेन टाइम TD, और TD का हमको कैलकुलेट भी करना है। सो हम लिखेंगे एट टाइम T इक्वल्स टू TD वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स 1/3 ऑफ VCC। बस ये वैल्यू रखना है, जब भी 2/3 हो रहा था यहाँ पहुंचा था, तो अब यहाँ पे 1/3 हो रहा है, बस ये रखना है यहाँ पे वैल्यू, इस जगह पे ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। जनरलाइज इक्वेशन हमको मालूम है, ये अगर आपने प्लॉट किए तो मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट पे कितना होता है TD टाइम पे, तो वो वैल्यू रखेंगे तो ये T में से TD निकल लेगा अपना। तो कितना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कितना आया TD टाइम पे, आर यू गेटिंग इट? 1/3। ये समझ में आ रहा है ना? Yes, ये sir. समझ में, 3 ही चीज है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, और एक जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, एक समय पे हमको डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू मालूम होना वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर। ये अल्टरनेटली चार्ज डिस्चार्ज बिटवीन 1/3 एंड 2/3 हो रहा है, लेकिन एट सर्टेन टाइम हमको वैल्यू मालूम रहता है, उस टाइम से हम TC या TD कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमको यहाँ मालूम चल गया कि एट टाइम TD वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रीचेस 1/3 ऑफ VCC, बस यही वाली वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे कि 1/3 ऑफ VCC, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम T कितना हो गया, 1/3 ऑफ VCC इक्वल टू 2/3 ऑफ VCC e रेज टू पावर T इक्वल्स टू, अब यहाँ टाइम TD रखेंगे, T इक्वल्स टू TD, क्योंकि हमको TD कैलकुलेट करना है, इसीलिए इतनी सब हम ये सब कर रहे हैं। अब यहाँ से आप VCC 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू 1/2, इतना मिल जाएगा, है ना। ये 2 को उधर ले जाओ और ये बाकी का यही रहने दो। टेकिंग लॉग विल गेट RB into C, नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। अब ये निगेटिव वैल्यू है, इसलिए TD इक्वल्स टू ये मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, यानी TD इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये 0.693 वैल्यू है, 0.693 RBC। सो इफ यू सी एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल। देखो डिस्चार्जिंग के टाइम में RA आया क्या, डिस्चार्जिंग के टाइम में RA आया क्या, नहीं आया, कि T इक्वल्स टू TC प्लस TD। आप चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम किस पे डिपेंडेंट है एक बार ऑब्जर्व करो। ये डिस्चार्जिंग टाइम सिर्फ डिपेंडेंट है RA, RB और C,
इट डज नॉट एट ऑल डिपेंड ऑन वीसीसी। तो आप वीसीसी 5 वोल्ट लो या 10 वोल्ट लो, टाइमिंग में चेंज नहीं आएगा। चेंज काय में आएगा, ज्यादा से ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा कि ये पहले 5 वोल्ट आ रहा था तो अब आ जाएगा ये 10 वोल्ट, पर टाइम उतना ही रहेगा। और हम तो टाइम के लिए कंसर्न है ना, वी आर कंसर्निंग अबाउट टाइम। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन, that it does not depend on VCC. It is not depending on supply voltage. So if you calculate T equals to this one, if you add this TC plus TD, you will get 0.693 RA plus twice RB into C. ठीक है, RB 2 बार आता है, चार्जिंग में भी आता है, डिस्चार्जिंग में आता है। RA सिर्फ 1 बार आता है, सिर्फ चार्जिंग में। C दोनों बार आता है, इसलिए कॉमन है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी 1/T किया तो आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल जाता है 1.44। ये आपको फार्मूला याद रखना है। 2 टाइम्स RB रहता है, ये मत भूलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी आप एस्टेबल डिजाइन करना है, आपको स्क्वायर पल्स बनाना है, जिसको आपको सपोज ये 2 मिनट रखना है, कोई चीज आपको 2 मिनट ऑन करना है और आपको 6 मिनट ऑफ रखना है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? ये TC, इसको TC, ये TC हो गया, ये TD हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर सपोज ये आपको डिजाइन करना है, अब आपको तो सब मैंने डिराइव करके दे दिया है, 2 मिनट ऑफ टाइम चाहिए, 6 मिनट। कहाँ से शुरू करूं बताओ? ऑन टाइम से मैं कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करूं? मुझे की वैल्यू निकाल, ऑन टाइम से काम करूं कि ऑफ टाइम से काम करूं? ऑन टाइम सर। ऑन टाइम से। ये देखो ऑन टाइम का फार्मूला है RP into C और ऑफ टाइम का है। नो सर, ऑफ टाइम से करेंगे। अब बोलो। तो होता है थोड़ा बहुत उनके तब ध्यान में नहीं है, क्योंकि हमारे पास अननोन वेरिएबल जहां कम रहेंगे उसको हम ट्राई करेंगे। अब आप क्या ध्यान में आ गया अभी? जो पहले, हाँ अभी ध्यान में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है, तो हमने इससे शुरू करना चाहिए। अब ये बताओ कि अगर इसको मैंने रखा कि T ऑफ इक्वल टू 6 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड, ये तो करोगे कि नहीं कन्वर्शन की? बस 60 सेकेंड 60 होंगे क्या? बराबर है ना? Yes, sir. यस सर। 0.693 RB into C। अब बताओ कैसे कर निकालोगे RB और C की वैल्यू? क्या एज्यूम करोगे? कैपेसिटर की वैल्यू पहले एज्यूम करोगे कि रजिस्टर की वैल्यू एज्यूम करोगे? कैपेसिटर के। हमेशा याद रखो, कैपेसिटर, रजिस्टर सस्ता है, इजीली वेरिएबल हम ले सकते हैं। कैपेसिटर बहुत कम स्टैंडर्ड वैल्यूज में आता है, इसलिए कैपेसिटर की वैल्यू एज्यूम करना। लेट C इक्वल टू ऐसे करना, 0.1 माइक्रोफेराड लो या 1 माइक्रोफेराड लो या 100 ले लो और कैलकुलेशन करना। उसके हिसाब से RB देखना कितना आ रहा है। अभी मैं कर नहीं रहा हूं, ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, पर सपोज वो 1K के अबाव है तो ठीक है। अगर ये 1K से कम आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या करोगे? इसकी वैल्यू घटा देना, तो ये बढ़ जाएगा। ये टाइम सेम, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इस तरीके से। तो ये 1K के अबाव आना चाहिए, इस तरीके से डिजाइन करना। आप गलती से भी मेरे कोई न्यूमेरिकल में अगर 100 ओम या 50 ओम या 5 ओम लिखेंगे ना तो गाली खाएंगे, क्योंकि इतने लो रेजिस्टेंस में हेवी करंट फ्लो होगा और वो 555 कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन माल फंक्शन, वो काम ही नहीं करेगा। तो उसके स्टैंडर्ड वैल्यू इस तरीके से डिजाइन करना है। तो यहाँ से C और RB निकल गया। अब C और RB निकल गया तो T ऑन में रख दो, तो RA की वैल्यू निकल जाएगी। RA हो गया, RB हो गया, C हो गया आपका डिजाइन। तो आप डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सपोज अभी वाले इसमें ये पिन 3 था और यहाँ पे मैंने एक LED लगा दिया। जब भी LED लगाते तो उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगाते हैं ना कि नहीं लगाते हैं? तो ये अभी की ये मिल गई, ये वाली अभी जो डिजाइन किया, ये 2 मिनट, ये 6 मिनट, ये 2 मिनट, ये 6 मिनट। बताओ LED ऑन कितने देर के लिए होगा और ऑफ कितने दिन के लिए होगा? 2 मिनट के लिए ऑन, 6 मिनट के लिए ऑफ। सबको लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये R की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं आपको वंस फॉर ऑल बता देता हूँ कि डिप्लोमा होल्डर को LED के रेजिस्टेंस सीरीज में कितना रहता है वो आना चाहिए। जनरली ये प्रैक्टिकल के वक्त मैं बताया करता हूँ। ये कैसा रहता है कि LED हम जो यूज करते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से जाते हैं। LED के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्ट रफली 2 वोल्ट आता है, डिपेंडिंग ऑन द LED वी आर यूजिंग। अगर आप बोलोगे ब्लू LED वगैरह तो उसमें ज्यादा रहता है, उसमें 3-4 वगैरह वोल्ट रहता है। पर नॉर्मली जो हम लोग LED का यूज करते हैं, कौन कौन से? ग्रीन, रेड और मेरे ख्याल से येलो। तो ये रफली 1.9 2 2.1, तो हम कैलकुलेशन के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट ले लेते हैं।
एक बात ये बता दिया मैंने आपको, एलईडी के अक्रॉस 2 वोल्ट। आया कि समझ में? यस सर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि एलईडी में से उसमें से रेजिस्टेंस अलाउड जो है वो रफली रेंज रहती है 10 मिली एम्पियर टू 50 मिली एम्पियर। ये मैं रफली बता रहा हूं। अब बताओ, अगर 10 मिली एम्पियर मैंने अगर उस एलईडी में से जाने दिया और दूसरे वही एलईडी में से 50 मिली एम्पियर जाने दिया, कब ब्राइट ज्यादा होगा? 10 मिली एम्पियर के वक्त होगा कि 50 मिली एम्पियर के वक्त होगा? यहां से 10 मिली एम्पियर जा रहा है, यहां से 50 मिली एम्पियर जा रहा है, कौन सा ब्राइट ज्यादा रहेगा? 50 वाला। 50। पक्का ना? कम से कम इतना अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो अच्छा लगेगा। नेचुरली जिसमें से करंट ज्यादा जा रहा है वो ज्यादा फॉरवर्ड बायस करेगा इसको, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, पर इट कैन लीड टूवर्ड्स डेंजर साइड। जिसमें सिर्फ हमको इंडिकेशन देखना है कि वो ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है, तो नॉर्मली हम मिनिमम करंट से काम करते हैं। ओके, तो डिजाइन करते वक्त 2 ही चीजें याद रखना, वोल्टेज अक्रॉस एलईडी ले लिया अभी जो बताया था 2 वोल्ट, और करंट थ्रू दिस एलईडी वी शुड कैलकुलेट थ्रू 10 मिली एम्पियर। तो अब टीटीएल वगैरह में यूज करते हैं, जब टीटीएल आईसीस के साथ अगर क्लॉक बनाना है तो हम वीसीसी कितना रखते हैं टीटीएल में? तो सपोज ये 5 वोल्ट के लिए हम स्क्वायर पल्स निकालेंगे 5 वोल्ट से, तो वीसीसी 5 वोल्ट लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो आउटपुट जा रहा है ये 3 से, यहाँ पे स्क्वायर पल्स आएंगी तो इसका ये जो हाई लेवल है ये कितना रहेगा? वीसीसी, बराबर है। अब ये दिया है हमने एलईडी को, और यहाँ रजिस्टर है, ये यहाँ पे मिला है, बराबर है, ये एलईडी है। तो यहाँ पे तो 2 ही वोल्ट रहेगा, तो बचा हुआ वोल्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, बराबर है ना? तो मुझे बताओ रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? कैन आई से V by I से, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V by R, कुछ भी करो, तो इस तरीके से कर सकते हैं ना? यस सर। तो देखो कैसा है, ये एलईडी है, ये रजिस्टर है, ये ग्राउंडेड है, और ये आउटपुट से आपको इस तरीके से पल्स मिल रही, यानी यहाँ आउटपुट जब हाई रहता है तो यहाँ वीसीसी मिलता है। ये वीसीसी कहाँ से कहाँ तक है? ये टोटल वोल्टेज है, इसके अक्रॉस का ड्रॉप है 2 वोल्ट, तो बचा हुआ ड्रॉप कहाँ रहेगा? इस रजिस्टर के थ्रू, बराबर है। तो R की वैल्यू P माइनस VLED या VCC माइनस VLED अपॉन ILAD। तो आपका हमेशा आप कैलकुलेशन कर सकेंगे। सपोज VCC इज 5 वोल्ट, आपका 2 वोल्ट, दिस 10 मिली एम्पियर, तो आपको क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 10 मिली एम्पियर, 0.3 किलो ओम। मिली है तो ऊपर किलो हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है, या करके बताओ? 0.3 इंटू 10 टू पावर 3, यानी ये करीब करीब 300 ओम आता है। तो हम नॉर्मली स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 330 ओम, ठीक है। अब मैं ये भी बताता हूँ कि कुछ जगह पे 5 वोल्ट पे आपको आर की वैल्यू 100 ओम रखी हुई भी मिलेगी। तो मुझे बताओ, अगर मैंने 330 की जगह 100 ओम लगाया, ब्राइटनेस किस में ज्यादा रहेगा? 100 ओम। इतना समझ में आ गया तो भी बहुत बड़ी चीज है। रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये 555 लगा हुआ है और यहाँ से मैं स्क्वायर पल्स दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों को फिर समझ में नहीं आता, इसलिए ये आउटपुट आ रहा है, ये स्क्वायर अजबी वाला ही है, ये 2 मिनट और ये 6 मिनट। मैंने यहाँ पे एलईडी लगाया, यहाँ रजिस्टर लगा दिया। ये रजिस्टर की वैल्यू कैसे चेंज होंगी? अगर 9 वोल्ट रहेगा तो 9 वोल्ट पे यूज करोगे तो रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो आप ये यहाँ पे आ रहा है ना वो वीसीसी, ये 2 का 2 फिक्स है, तो ये 5 माइनस 2 3 आया, 9 माइनस 2 7 आएगा। तब आप 1K का रजिस्टर लगा लेंगे तो काम चल जाता है 9 वोल्ट। मतलब आइडियली आप 230 वोल्ट भी दे सकते हैं एलईडी के अक्रॉस, बट उतने हाई वैल्यू का यहाँ पे रजिस्टर भी लगाना पड़ेगा। आपने ये देखा है टेस्टर? देखा ही होगा, करंट टेस्टर देखा ना, घर में हाथ लगाते हैं किसी सप्लाई पे तो वो ग्लो होता है ना वहां पे। यस सर। क्या रहता है उसके अंदर? उसके अंदर एलईडी रहता है, एक एलईडी रहता है और 1 मेगा या उस टाइप का बहुत सारा हेवी वैल्यू का रजिस्टर रहता है। ये आप उसको टच करते हैं, बराबर है, तो इसमें से अल्टरनेटिंग जा रहा है तो वो ब्लिंक कर रहा है, और आप जहां पे ये इसको सप्लाई को दे दिया और यहाँ पे आप क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो आपके बॉडी के थ्रू उसको ग्राउंडिंग मिलता है। तो जैसे ग्राउंडिंग मिलता है तो सर्किट कंप्लीट होता है। अगर यहाँ सप्लाई है तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो एलईडी ग्लो होंगी, नहीं तो नहीं होगा। बस सिंपल फेनोमेना है। तो कभी ध्यान से देखा भी करो टेस्टर के अंदर दिखता क्या है, समझे? Yes, तो भैया sir. ये बताओ, ये एलईडी कितने मिनट ऑन होगा और कितने मिनट ऑफ होगा? अभी के हिसाब से 2 मिनट ऑन 6 मिनट ऑफ, बराबर है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझो। अब मैं यहाँ पे और एक ऐसे एलईडी लगा दिया,
ये बताने के लिए तो कर रहा था। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली मैं सबसे करवाता था, ये जिनके पास भी ब्रेड बोर्ड रहते हैं ना घर पे, ये करने लगाता हूँ। ऐसा एक एलईडी लगा दिया। अब मुझे बताओ, ये तो 2 मिनट ऑन हो गया, 6 मिनट ऑफ हो गया। ये एलईडी का क्या होगा? ये एलईडी कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा? सोचो जरा। 6 मिनट के लिए ऑन होगा। पक्का? सोचने दो बाकी लोगों को। ये एलईडी ऑन कब होगा? जब या हाई आएगा कि लो आएगा। आउटपुट में हाई आएगा तब ग्लो होगा कि लो आएगा तब ग्लो होगा? लो। पक्का? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई लगा हुआ है। करंट फ्लो कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ जब लो आएगा तब होगा। इसका क्या मतलब है? ये वाला एलईडी हाई आने पर ग्लो होता है, ये वाला एलईडी लो आने पर ग्लो होता है। इसका मतलब क्या है? ये अल्टरनेट ऑन ऑफ होगा। ये 2 मिनट ऑन, 6 मिनट ऑफ, ये 6 मिनट ऑन, 2 मिनट ऑफ, इस तरीके से चलेंगे। अगर दोनों का सेम टाइम है तो अल्टरनेटली बराबर इक्वल टाइम में अल्टरनेटली सीरीज टाइप काम करते रहेगा, यानी ऑन ऑफ होते रहेगा। समझ में? जब ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा, जब ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा। ये समझ में आया क्या आपको? हेलो? यस सर, यस सर। इसी के आपको जब और कुछ अच्छे घर में प्रोजेक्ट छोटे छोटे करने रहेंगे ना, इसमें आप बहुत सारी वेरिएशन ऐसे ला सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 8 से निकला हुआ है, ये एलईडी के क्या करना, जनरली पैरेलल करते वक्त सबके रजिस्टर ना अलग अलग रखना पड़ता है। एक ही कॉमन रजिस्टर नहीं लगा कि ऐसे आप मल्टीपल एलईडीज भी लगा सकते हैं। याद रहे ये एलईडी है, डायोड नहीं, इसलिए एरो दिखाना जरूरी है। सेम वे यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको नॉर्मली ऑन और नॉर्मली ऑफ लोड ध्यान में आ गया एलईडी लिखाने के कारण। ये थोड़ा सा मैं हट के जानबूझ के इंटरेस्टिंग है करके बताया, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अब क्या हो गए, ये 3 ऑन होंगे एट अ टाइम, ये 3 ऑफ हो गए। तो ऐसे मल्टीपल भी आप पैरेलल में आउटपुट लगा सकते हैं। आपके समझ में आया ये सब क्यों बताया मैंने इस टाइप का? यस सर। ओके। तो इसमें अगर मैंने आपको बोला कि आपके घर में कोई मोटर को 2 मिनट ऑन करना है और 4 मिनट ऑफ करना है। बेस्ट एग्जांपल ऐसा समझो, आपका कूलर होता है ना, कि उसको अपन देखते हैं कि वो कूलर जो नीचे का पानी जो है ऊपर लाता है, वो हर समय शुरू रहे तो कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर ऑन रख दे और बाकी देर ऑफ रखे तो हम पावर सेविंग कर सकते हैं। तो कैसे करना? अगर ऐसा करना है तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट वो ऑन हो और 4 मिनट ऑफ हो जाए। कैसे करेंगे? कोई हिंट दे सकता है? अब मोटर करना है, एलईडी तो हो जाता है, मोटर कैसे करेंगे? कोई आइडिया दो। रिले नाम का चीज, रिले कैसे रहता है मालूम है ना? रिले प्रॉब्लम क्या है, ये जो एलईडी है ना, इसको करंट कितना लग रहा है? इसको सिर्फ 10 मिली एम्पियर, और हमको 555 मालूम है कितना करंट देता है। सोर्स एंड सिंक करंट 200 मिली एम्पियर। मतलब इस 555 की कैपेसिटी है कि इसको उतना करंट दे सकता है, लेकिन आपके मोटर को तो बहुत ज्यादा करंट लगता है। तो कैसे करेंगे? एक तो ये चीज है कि इस तरीके से सर्किट में ड्राइवर लगाने पड़ते हैं अपने को। ये ट्रांजिस्टर जो है एज अ ड्राइवर काम आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग वो लोड लगा सकते हैं। दिखा रहा है यहाँ पे लोड, वही यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। सो आपको रिले मालूम ना? रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। यस सर। हाँ, उसमें क्या रहता है? कॉइल रहती है। वो जितने वोल्टेज के लिए उतना उसको कॉइल में मिल गया वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट, तो इसको अगर 5 वोल्ट मिल गया तो यहाँ 3 पॉइंट रहते हैं, और इसको बोलते हैं एनओ और एक को बोलते हैं एनसी। मतलब ये नॉर्मली ओपन होता है और ये जो है नॉर्मली शॉर्ट है। तो जो एनओ है वो एनसी हो जाता है, एनसी जो है वो एनओ हो जाता है। मतलब सिंपली ये स्विच ऑलरेडी ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगा जब उसको उतना सप्लाई दे दिया, और ये जो ऑन है ये हो जाएगा ऑफ। ये मीनिंग है। तो वो चीज हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि ये 555 है, इसको डायरेक्ट आउटपुट न देते हुए एक आधे ट्रांजिस्टर के थ्रू, और ये रिले यहाँ लगा देंगे, ये रिले यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इसको दे देंगे ये रिले जितने वोल्ट का है। ये जैसे सपोज मैंने 5 वोल्ट के लिए वापर रहा था, लेकिन रिले 12 वोल्ट का होगा तो यहाँ 12 वोल्ट, 5 वोल्ट का ही होगा तो ये कॉमन कर देंगे, तो ये 12 वोल्ट। रिले अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट देंगे, और ये अपना काम करेगा। क्या करेगा कि जैसे इसको हाई मिला तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ 12 वोल्ट लगा है, या ये शॉर्ट करेगा कैपेसिटर और इमीटर, तो ये रिले एक्चुएट होगा। एक्चुएट होगा तो क्या होगा? जो एनओ था वो शॉर्ट हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, और जो एनसी था वो एनओ हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है? अब मुझे ये बताओ कि अगर आपकी ये मोटर है या लैंप है, तो ये लैंप कैसे ग्लो होगा? बस यहाँ फेज दे दिया, यहाँ न्यूट्रल दे दिया, बराबर है ना? ये लैंप या मोटर। Yes. अब बस घर में क्या करते हैं आप?
यहाँ पे एक स्विच डाल देते साथ में, और ये फेज और न्यूट्रल को दे दिया। अब ये मैनुअल स्विच है ना आपकी, जब ऑन करना है तो स्विच दबा दो, ऑफ करना है तो स्विच ऑफ कर दो। Yes, sir. Yes, sir. बस इसी के जगह वो रिले के वो पॉइंट डाल देने हैं, जैसे समझो मेरा एनओ डाला मैंने, ये डाल देना है एनओ, और यहाँ पे आपका लोड आ गया, वो मोटर हो सकता है, लैंप हो सकता है, और इसको दे दो फेज और न्यूट्रल को। अब ये स्विच कैसे ऑपरेट होगा, ये वाला, ये था मैनुअल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो कॉइल को जब वोल्टेज मिलेगा तो ये ऑन हो जाएगा। कॉइल को वोल्टेज कब मिलेगा, क्योंकि 555 के आउटपुट को दिया है हमने, ये 555 के आउटपुट के दिया है, और कॉइल लगा इसके कलेक्टर में, ये दिया यहाँ पे 12 वोल्ट। अब यहाँ पे जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट एंड इट विल एक्चुएट दिस रिले, रिले एक्चुएट होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये क्या एडवांटेज है रिले का, दैट वी आर एबल टू ऑपरेट दिस स्विच from a load, means we are actuating the high voltage with the low voltage। कैसे कि ये 5 वोल्ट के ऑपरेशन से हम ये 230 वोल्ट का मोटर, लैम्प, कोई भी लोड हो, ये हम ऑन या ऑफ कर सकते। अब अगर इसका आउटपुट दे दिया तो ये क्या होगा, 2 मिनट ऑन, 4 मिनट ऑफ, 2 मिनट ऑन, 4 मिनट ऑफ। जो ऐसा करना है वैसे कर सकते हैं। इसी का अपोजिट अगर एनसी लगा देते तो ये 4 मिनट ऑफ ऑन रहता, 2 मिनट ऑफ हो जाता, 4 मिनट ऑन, 2 मिनट ऑफ। ये आपको मैं अगर समय मिला और मैं लेकर आया ना तो आपको खुद प्रैक्टिकली दिखाऊंगा लैम्प ऑन ऑफ करते हुए। मैं नॉर्मली पिछले सेमेस्टर में वो काम कर चुका हूँ बहुत लोगों को। मैं सिर्फ 555 एलईडी पे ना दिखाते हुए एक्चुअल लैम्प को ऑन ऑफ करवाता हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इफ इट इज एलईडी आई कैन गिव इट डायरेक्टली थ्रू दिस पिन 3, बट इफ इट इज अ हेवी करंट विच रिक्वायर्स मोर करंट आई विल हैव टू गिव अ ड्राइवर। ये ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज अ ड्राइवर, इट इज सिंपली अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। So heavy current will flow, which is the requisite one. So required current it will receive, and that lamp or load, whatever it is, it will be actuated. It can be lamp or motor. So I hope you have understood this one. Yes, sir. तो रिले को बहुत हम लोग कम आंकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्ट है, दे मस्ट हैव दी ब्रेडबोर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, क्यूबिकल छोटे से आते हैं 5 वोल्ट वगैरह के, वो लो। ये सिंपल से ऐसे कोई ट्रांजिस्टर होने चाहिए 2N2222 ये वाला, या BC547 या CL100। ये ट्रांजिस्टर छोटे छोटे, कुछ TTL ICs जो मैंने इसमें बताया, 555 की IC होना चाहिए, कुछ रजिस्टर, कुछ कैपेसिटर। तो आप जो चाहे वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, खुद ही एलईडी वगैरह ग्लो कर सकते। सो इफ यू आर एबल टू परसीव दैट वन, बस एक 9 वोल्ट की बैटरी होना, 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होना, और 5 वोल्ट आपको मिल जाए तो आप कई चीजों से खेल सकते हैं। तो आज का समय तो काफी यहीं पे खत्म हो गया, एंड विल फिनिश द क्लास।